السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کی مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین کے صوبے ہینان میں ایشیا اور دنیا مشترکہ چیلنجز مشترکہ ذمہ داریوں کے عنوان سے 4 روزہ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے بھی شرکت کی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اقتصادی انضمام کو فروغ دینے، ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے اور عالمی سطح پر تکنیکی جدت طرازی کو آگے بڑھانے میں چین کی قیادت کی تعریف کی ہے۔ بواؤ فورم فار ایشیا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن شاہد خاقان عباسی نے حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والی بواؤ فورم فار ایشیا سالانہ کانفرنس 2024 کے موقع پر چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ BFA کی سالانہ کانفرنس گزشتہ جمعے کے روز جنوبی چین کے صوبے ہینان کے خوبصورت تفریحی قصبے بواؤ میں متعدد اتفاق رائے پر پہنچنے کے بعد اختتام پذیر ہوئی۔ ایشیا اور دنیا مشترکہ چیلنجز مشترکہ ذمہ داریاں کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس 4 روزہ کانفرنس میں 60 سے زائد ممالک اور خطوں سے تقریباً 2000 مندوبین اور تقریباً 40 ممالک اور خطوں سے 1100 سے زائد صحافیوں نے شرکت کی۔ اس سال شاہد خاقان عباسی دوسری بار بواؤ فورم میں شریک ہوئے اور دسمبر 2023 کے بعد سے BFA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن کی حیثیت سے یہ ان کی پہلی شرکت تھی۔ شاہد خاقان عباسی نے اقتصادی انضمام اور ماحولیاتی خدشات کو ایشیا اور دنیا کے لیے اہم مشترکہ چیلنجز کے طور پر اجاگر کیا۔ انہوں نے چین کی جدید تکنیکی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے اسے خاص طور پر ایشیائی خطے میں ان مسائل سے نمٹنے میں سب سے بہتر قرار دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے معمول کی پریس بریفنگ کی۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والے 5 شہریوں کی باقیات پیر کے روز واپس چین لائی گئی۔ باقیات کو پاکستانی فوجی طیارے کے ذریعے واپس لایا گیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والے 5 چینی شہریوں کی باقیات پیر کے روز چین واپس لائی گئیں۔ ترجمان وانگ وین بین نے پیر کے روز بیجنگ میں معمول کی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہلاک شدگان کی باقیات کو پاکستانی فوجی طیارے کے ذریعے واپس لایا گیا۔ وانگ وین بین نے مزید کہا کہ چین انتہائی عزم کے ساتھ محرکات کا پتہ لگانے، مجرموں اور ان کے ذمہ داروں کو سزا دینے اور پاکستان میں چینی شہریوں، منصوبوں اور اداروں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے میں پاکستانی فریق کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے کے مطابق 26 مارچ کو پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں مقامی وقت کے مطابق دن 1 بجے کے قریب اس وقت 5 چینی شہری اور ایک پاکستانی ہلاک ہو گئے تھے، جب صوبے میں ایک چینی کمپنی کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی ایک گاڑی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ چین نے اعلیٰ معیار کی اقتصادی اور سماجی ترقی میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ کوآپریٹو تھنک ٹینکس کی رپورٹ میں چین کی ترقی کے مشترکہ فوائد کو اجاگر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جدید کاری میں مسلسل پیش رفت ملک میں کمپاؤنڈنگ مفاد پر مبنی ترقی لا سکتی ہے۔ اتوار کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق چین نے اعلیٰ معیار کی اقتصادی اور سماجی ترقی میں نمایاں پیش رفت کی ہے، خاص طور پر 5 بڑے شعبوں میں، یعنی لوگوں کی فلاح و بہبود، کھپت، مینوفیکچرنگ، انفراسٹرکچر اور خدمات۔ چین کی رینمن یونیورسٹی کے چنگ یانگ انسٹیٹیوٹ فار فائنینشیل اسٹڈیز اور امریکہ، روس، کینیڈا اور بھارت کے کوآپریٹو تھنک ٹینکس کی جانب سے مشترکہ طور پر جاری کی گئی رپورٹ میں چین کی ترقی کے مشترکہ فوائد کو اجاگر کیا گیا۔ چینی جدید کاری میں مسلسل پیش رفت ملک میں کمپاؤنڈنگ مفاد پر مبنی ترقی لا سکتی ہے، جو چین کے لیے پائیدار اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک محرک قوت کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق چین کے کمپاؤنڈنگ مفاد کی خصوصیت منافع کا استحکام، طویل مدتی ترقی اور پائیداری ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کی جدید کاری کی رفتار، جس میں کمپاؤنڈنگ فوائد کی ترقی شامل ہے، جدت طرازی پر مبنی اقدامات، اصلاحات کو گہرا کرنے، کھلے پن کو بڑھانے اور ماحول دوست ترقی کو فروغ دینے پر مرکوز ہے۔ رپورٹ میں چین میں 2035 تک فی کس آمدنی، بین الاقوامی تبادلوں، کاروباری اداروں کی عالمی مسابقت اور ماحولیاتی استحکام جیسے شعبوں میں مزید پیش رفت کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔
شنگون نیو ایریا کو مستقبل کا شہر قرار دیا جاتا ہے۔ یکم اپریل کو شنگون نیو ایریا کی 7ویں سالگرہ منائی گئی۔ چین نے یکم اپریل 2017 کو شنگون نیو ایریا قائم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔ شمالی چین کے صوبہ ہیبے میں واقع شونگ آن نیو ایریا کو چین کا سب سے کم عمر شہر اور مستقبل کا شہر قرار دیا جاتا ہے۔ یکم اپریل کو اس کی 7ویں سالگرہ منائی گئی۔ چین نے یکم اپریل 2017 کو شونگ آن نیو ایریا قائم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا تاکہ بیجنگ کو قومی دارالحکومت کی حیثیت سے اس کے کردار کے لیے غیر ضروری افعال سے فارغ کیا جا سکے اور بیجنگ، تیانجن اور ہیبے خطے کی مربوط ترقی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ گزشتہ 7 سالوں میں شونگان ایک بلیو پرنٹ سے حقیقت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے بنجر نشیبی علاقوں اور خستہ حال دیہاتوں کی تبدیلی سے 4000 سے زیادہ عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ 500 کلومیٹر سے زیادہ ڈیجیٹل سڑکیں تمام سمتوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور یہاں زیر زمین پائپ لائن سسٹم کی لمبائی 144 کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ شونگان اربن کمپیوٹنگ سینٹر نے 1 سال قبل اپنے آپریشن کے بعد سے شہر کے بارے میں 20 ارب سے زیادہ اعداد و شمار جمع کیے ہیں۔ چین نے سپر مائکروسکوپ نامی بڑی سائنسی تنصیب کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا۔ منصوبے میں 11 نئے نیوٹرون آلات، تجرباتی ٹرمینلز اور یوزر لیبارٹریز کی تعمیر شامل ہے۔ گزشتہ سال چینی صدر شی جن پنگ نے شونگان کو اعلیٰ معیار کے حامل علاقے میں تعمیر کرنے کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ اب تک شونگان نیو ایریا نے 383 کلیدی منصوبوں میں 671.2 بلین یوان کی مجموعی سرمایہ کاری مکمل کی ہے، جس میں 184 مربع کلومیٹر کے ترقیاتی علاقے کا احاطہ کیا گیا ہے۔ چین نے سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی کو فروغ دینے میں مدد کے لیے مائکروسکوپک دنیا کی ریسرچ میں سپر مائکروسکوپ نامی ایک بڑی سائنسی تنصیب کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنوبی چین کے صوبہ گوانگ ڈونگ کے ڈونگ گوان شہر میں ہفتے کے روز ملک کی پہلی تحقیقی سہولت جو مائکروسکوپک ریسرچ کے لیے نیوٹرون بیم کا استعمال کرتی ہے، اسے CSNS کہا جاتا ہے۔ اس کے دوسرے مرحلے کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ CSNS فیز 2 منصوبے میں 11 نئے نیوٹرون آلات، تجرباتی ٹرمینلز اور یوزر لیبارٹریز کی تعمیر شامل ہے۔ دوسرے مرحلے کی تکمیل کے بعد CSNS کی اپلیکیشنز کے دائرہ کار اور صلاحیتوں میں بہت بہتری آئے گی اور جدید سائنسی تحقیق اور معاشی ترقی میں مدد کے لیے تجربات کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا۔ نیوٹرون اسکیٹرنگ نے طبیات، کیمسٹری، حیاتیات، میٹیریل سائنس اور میٹیریل انجینئرنگ کے بہت سے شعبوں میں حصہ ڈالا ہے، جہاں اس کی اپلیکیشن صارفین کی مصنوعات سے لے کر فوٹو وولٹک مواد اور ادویات کی فراہمی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ CSNS منصوبے کی تعمیر 2011 میں 2.3 بلین یوان کی مجموعی سرمایہ کاری کے ساتھ شروع ہوئی۔ چین کے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں توسیع ہوئی ہے، جو کاروباری اداروں کے اعتماد میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں چین کی مینوفیکچرنگ PMI میں پچھلے مہینے کے مقابلے میں 1.7 کا اضافہ ہوا ہے۔ اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والے مسلسل 5 ماہ کے کانٹریکشن کے بعد مارچ میں چین کے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں توسیع ہوئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروباری اداروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت میں داخلی محرکات میں اضافہ ہوا ہے۔ چین کے قومی ادارہ برائے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں چین کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے پرچیزنگ مینیجر انڈیکس 50.8 رہا۔ اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں چین کی مینوفیکچرنگ PMI میں پچھلے مہینے کے مقابلے میں 1.7 کا اضافہ ہوا، جو توسیع کی حد تک واپس آ گیا ہے۔ مارچ میں چین کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے پیداوار اور آپریشن کا ایکسپیکٹیشن انڈیکس پچھلے مہینے کے مقابلے میں 1.4 اضافے کے ساتھ 55.6 تھا۔ ایک سروے کے مطابق کاروباری اداروں کو اب بھی پیداوار اور آپریشن میں کچھ نمایاں چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے شدید مسابقت اور ڈیمانڈ۔ صنعت کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ میکرو اکانومی اب بھی بحالی کے عمل میں ہے اور توسیع کا رجحان مزید مضبوط ہوگا۔ ہانگزو شہر میں ولیج CEOs کی ٹریننگ کے لیے فورم کا انعقاد کیا گیا۔ ولیج CEO گاؤں کی زرعی اور اقتصادی سرگرمیوں کے مختلف پہلوؤں کا انتظام کریں گے۔ فورم میں متعدد ماہرین اور پرجوش نوجوانوں نے دیہی ترقی اور بحالی پر تبادلہ خیال کیا۔
मशरकी चीन के सूबे ज़ीजियांग के शहर हांगचो में हफ्ते के रोज़ विलेज सीईओज़, जिन्हें ज़रई मैनेजर्स के नाम से भी जाना जाता है, की ट्रेनिंग के लिए एक फोरम का इनेकाद किया गया। विलेज सीईओज़ गांव की ज़रई और इक्तसादी सरगर्मियों के मुख्तलिफ पहलुओं का इंतज़ाम करेंगे। इनमें ज़रई कोऑपरेटिव्स की निगरानी, तकनीकी मुआवनत फराहम करना और ज़रई मसनूआत को फ़रोग़ देने के मकसद से मार्केटिंग की कोशिशों की निगरानी शामिल है। चीनी इंटरनेट कंपनी टेंसेंट और चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मुश्तरका मेज़बानी में मुनक्किद होने वाले इस फोरम में मुतअद्दिद माहिरीन और पुरजोश नौजवानों ने देही सलाहियतों की तरक्की और देही बहाली पर तबादला ख्याल किया। जदीद ख्यालात और टेक्नोलॉजीज़ से मुतासर होकर विलेज सीईओज़ देही इलाकों में काम कर रहे हैं। वो मकामी रिवायात, सकाफत और वसाइल के इश्तराक से एक मुनफरिद और इख्तराई तरक्की की राह हमवार कर रहे हैं। जनूब मगरबी चीन के सूबा यूनान के याओ टोंग शहर की यिलियांग काउंटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक गांव के सीईओ ने कहा कि मुझे लगता है कि डिजिटल ऑपरेशन हमारे गांव की मुस्तकबिल की तरक्की के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है, लिहाजा हम लाइव स्ट्रीमिंग सेल्स पर काम करेंगे। गुज़िश्ता साल 8 दिसंबर के बाद से हमारा कारोबार 86,000 युआन से तजावुज़ कर गया है। बीजिंग में चीन की मुसलसल तरक्की के मौजू पर फोरम का इनेकाद किया गया। बैनुल-अक़वामी तंजीमों और आलमी कारोबारी बरादरी के 110 से ज़ायद मेहमानों ने शिरकत की। मारूफ मल्टीनेशनल कंपनीज के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने चीन की तरक्की के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया। दुनिया की मारूफ मल्टीनेशनल कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने चीन को आला मयार, सब्ज़ और पायदार तरक्की के हुसूल में मदद के लिए अपने सनती फ़वाइद को बुरुए कार लाने पर अपने नुक्ता नज़र का इश्तराक किया है। रियो टिंटो ग्रुप के सीईओ जैकब स्टॉशलम ने चाइना डेवलपमेंट फोरम 2024 के मौके पर सीसीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में चीन के साथ अपने ताउन के बारे में बात की। 24 मार्च को बीजिंग में चीन की मुसलसल तरक्की के मौजू के साथ मुनक्किद होने वाले इस फोरम में बैनुल-अक़वामी तंजीमों, फॉर्चून 500 कंपनियों और आलमी कारोबारी बरादरी के 110 से ज़ायद मेहमानों ने शिरकत की। स्टॉशलम ने कहा कि रियो टिंटो ग्रुप स्टील बनाने के अमल में कार्बन इखराज को कम करने के हल तलाश करने के लिए चीन की स्टील इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है। एक और मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव हार्टिंग का ख्याल है कि बॉश चीन की ऑटोमोबाइल बरामदात को मज़ीद फ़रोग़ देगा, जिससे चीनी ऑटोमोबाइल इंटरप्राइजेस के आलमी असर व रसूख में इजाफा होगा। एक और सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैक्वायर ने इस बात पर जोर दिया कि माहौल दोस्त तरक्की इनकी कंपनी के साथ साथ चीन के लिए भी एक मुश्तरका हदफ है और वो उम्मीद करते हैं कि चीनी शराकतदारों के साथ ताउन मुल्क और इससे बाहर पायदार तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालेगा। चीन और अमेरिका के दरमियान चलने वाली मुसाफिर परवाज़ों में इजाफा हो गया। कोरोना वबा के बाद परवाज़ों की तादाद हर हफ्ते 100 तक पहुँच गई। कोविड से पहले दोनों ममालिक के दरमियान 300 परवाज़ें हुआ करती थी। हाल ही में चीन और अमेरिका के दरमियान चलने वाली मुसाफिर परवाज़ों की तादाद हर हफ्ते 100 तक पहुंच गई है, जो कोरोना वबा के बाद से एक नुमाया इजाफा है। फरवरी के अवाखिर में चीन की सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया था कि 31 मार्च से चीनी और अमरीकी एयरलाइंस हर हफ्ते मजमूई तौर पर 100 शेड्यूल मुसाफिर परवाज़ें ऑपरेट कर सकती हैं। कोविड से पहले के सालों में एक हफ्ते में 300 परवाज़ें हुआ करती थीं, लिहाजा नई परवाज़ों के इजाफे के बावजूद मौजूदा तादाद अब भी कोविड से पहले की सतह का सिर्फ 1/3 है। कारोबारी रहनुमाओं का कहना है कि एयरलाइंस को अपनी परवाज़ों को मुकम्मल तौर पर तेज़ करने से पहले मुसाफिरों की ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत है। शंघाई में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर एरिक यांग ने कहा, इस वक्त मेरे ख्याल में हम अभी भी तलब की तरफ से किसी हद तक जदोजहद कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि दोनों हुकूमतें परवाज़ों में इजाफे के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं और फिर एयरलाइंस को भी आगे बढ़ना होगा। ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से डिमांड में इजाफा चाहिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। बीजिंग इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एरिया में तरक्की की नई मिसाल सामने आ गई। एनर्जी व्हीकल फैक्ट्री में हर 76 सेकंड में नई गाड़ी प्रोडक्शन लाइन से उतरती है। फैक्ट्री में 700 से ज़ायद रोबोट्स खुदकार तरीके से काम करते हैं।
چین کے دارالحکومت بیجنگ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدت طرازی کے قائدانہ کردار کو تقویت دیتے ہوئے ابھرتی ہوئی صنعتوں اور مستقبل کی صنعتوں کو قائم کر کے نئے معیار کی پیداواری صلاحیت کو بھرپور طریقے سے تیار کیا ہے تاکہ اعلیٰ معیار کی ترقی کو مضبوط فروغ دیا جا سکے۔ بیجنگ کے جنوب مشرقی مضافاتی علاقے میں واقع ای ٹاؤن کے نام سے مشہور بیجنگ اکنامک اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ایریا میں ایک نئی انرجی وہیکل فیکٹری میں ہر 76 سیکنڈ میں ایک نئی گاڑی پروڈکشن لائن سے اترتی ہے، جس میں 700 سے زائد روبوٹس 100% خودکار طریقے سے کام کرتے ہیں۔ 2023 میں ای ٹاؤن میں آٹو موبائل اور نقل و حمل کے سامان کی صنعت کی پیداوار کی قیمت 198.3 بلین یوان تک پہنچ گئی۔ 4 سال سے بھی کم عرصہ قبل قائم ہونے والے بیجنگ ہائی لیول آٹو ڈرائیونگ ڈیمونسٹریشن ایریا نے شہر کو جدت طرازی کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے، جس میں جدید ترین ڈرائیور لیس ڈرائیونگ منظرنامے حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں۔ اس وقت پورے ڈیولپمنٹ ایریا میں ڈرائیور لیس گاڑیوں کا استعمال ممکن ہے اور سیلف ڈرائیونگ ٹیکسیوں نے مسافروں کو سروسز فراہم کرنا شروع کر دی ہیں۔ بیجنگ تاشنگ ہوائی اڈے اور ڈیولپمنٹ ایریا کے درمیان سفر کرنے والے مسافر سیلف ڈرائیونگ گاڑیاں بک کر سکتے ہیں۔ شینزن شہر کی زمینی بندرگاہوں کے ذریعے ہانگ کانگ اور مکاؤ سے مسافروں کی ریکارڈ تعداد میں اضافہ ہوا۔ عوام میں شمال کی طرف چینی مین لینڈ کا سفر تیزی سے مقبول ہونے لگا۔ چینی روایتی چنگمنگ فیسٹیول کے دوران بہت سے افراد نے چھٹیوں کے لیے مین لینڈ کا انتخاب کیا ہے۔ جنوبی چین کے شینزن شہر کی زمینی بندرگاہوں نے ہانگ کانگ اور مکاؤ سے مسافروں کی ریکارڈ تعداد دیکھی ہے۔ یہاں کے لوگوں میں شمال کی طرف چینی مین لینڈ کا سفر تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ تعطیلات گزارنے یہاں آتے ہیں۔ چینی روایتی چنگ منگ فیسٹیول کے دوران ہانگ کانگ اور مکاؤ کے بہت سے رہائشیوں نے چھٹیوں کے لیے مین لینڈ جانے کا انتخاب کیا ہے۔ ہانگ کانگ میں لوگوں کے لیے ایسٹر کی 4 روزہ تعطیلات کے پہلے دن جمعے کو شینزن میں فوٹیان بندرگاہ کے ذریعے اندرون اور بیرون ملک جانے والے مسافروں کی تعداد 2,20,900 تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے اوائل میں بندرگاہ کی کسٹم کلیئرنس دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے ایک نئی بلند ترین سطح ہے۔ ہانگ کانگ یوہائی مکاؤ پل پر جمعے کے روز ہانگ کانگ اور مکاؤ سے مسافر گاڑیوں کی جانب سے 10,400 اندرون ملک سفر کیے گئے، جو گزشتہ جمعے کے مقابلے میں 56.4% زیادہ ہیں، اور مکاؤ گاڑیوں کے نارتھ باؤنڈ ٹریول اور ہانگ کانگ گاڑیوں کے نارتھ باؤنڈ ٹریول اسکیموں کے 1 جنوری 2023 اور 1 جولائی 2023 سے نافذ العمل ہونے کے بعد سے ایک نیا یومیہ ریکارڈ ہے۔ چین میں سیاحت کے شعبے میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ یونگزو شہر میں سیاحوں کی بڑی تعداد پھولوں سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئی۔ صبح گوانگڈونگ کی سفاری پارک میں بھی بچوں کا رش لگ گیا۔ چین بھر میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس موسم بہار میں ملک بھر کا سفر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے سیاحت کے شعبے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشرقی چین کے صوبے جیانگسو کے شہر ہانگژو میں سیاحوں کی بڑی تعداد پھولوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے شوشیہو لیک کے خوبصورت مقام کا رخ کر رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں اس خوبصورت مقام پر سیاحوں کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس میں روزانہ آنے والوں کی تعداد 30,000 افراد سے تجاوز کر گئی ہے، جس کی وجہ سے پارک توقعات سے بڑھ کر موسم بہار کی سیاحت کے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ مارچ میں سیاحوں کی شہر کی دلکشی کے بارے میں تفہیم کو بڑھانے کے لیے سرگرمیوں کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ جنوبی چین کے صوبہ گوانگڈونگ کے ایک سفاری پارک میں بچوں کے ایک گروپ نے اپنے والدین کے ساتھ چڑیا گھر کے جانوروں کی خوراک اور طرز زندگی کا قریب سے تجربہ کیا۔ طلباء کے لیے تیار کردہ اس طرح کے پروگرام موسم بہار میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ والدین کا خیال ہے کہ یہ ان کے بچوں کے لیے فطرت کو قریب سے دیکھنے کا ایک بہترین وقت ہے۔ زیجیانگ نے سمندری پلاسٹک آلودگی سے نمٹنے کے لیے جدید پروگرام کا آغاز کر دیا۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ساتھ مربوط اس پروگرام کو بلیو سرکل کا نام دیا گیا۔ پروگرام سمندری پلاسٹک کی ری سائیکلنگ اور ری مینوفیکچرنگ کے عمل کا پتہ لگاتا ہے۔ مشرقی چین کے ساحلی صوبے زیجیانگ نے ایک جدید پروگرام کا آغاز کیا ہے، جو سمندری پلاسٹک آلودگی کی دیرینہ عالمی گورننس چیلنج سے نمٹنے کے پائیدار طریقوں کی تلاش کرتا ہے، جبکہ اہم معاشی اور ماحولیاتی فوائد پیدا کرتا ہے۔
इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन जैसी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के साथ मरबूत ये समंदरी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग के अमल का पता लगाता है और साहिली पानियों में आलूदगी को मौसर तरीके से कम करने में मदद करता है। 60,000 से ज़ायद अफराद, 237 कंपनियों और 10,000 बहरी जहाज़ों की शमूलियत के साथ मल्टी सेक्टर ब्लू साइकिल ताउन गुज़िश्ता अक्टूबर में तकरीबन 2500 नामजदगियों में नुमाया रहा और इसने समंदरी आलूदगी में कमी के लिए अपनी जदीद कोशिशों पर अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे बावकार माहौलियाती एजाज़ 2023 का चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता। अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 2254 टन प्लास्टिक का फुजला जमा किया गया है, जिससे तकरीबन 2930 टन कार्बन के इखराज में कमी वाक़ई हुई है। इस मंसूबे से पैदा होने वाली इक्तसादी कदर 50 मिलियन युआन तक पहुंच गई है। ब्लू साइकिल मंसूबे के दायरा कार में प्लास्टिक की बोतलों, फोम बोर्ड्स और माहीगीरों की तरफ से इनकी ऑफशोर सरगर्मियों के दौरान पैदा होने वाले दीगर फुजले की रिसाइकलिंग शामिल है। चीन का शिजांग खुद इख्तियार इलाका तरक्की के अजीम दौर में दाखिल हो गया। शिजांग में जमहूरी इस्लाहात की 65वीं सालगिरह मनाई गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की वजह से यहाँ के बाशिंदे बहुत मुतमईन हैं। चीन का शीजांग खुद इख्तियार इलाका जमहूरी इस्लाहात के आगाज़ के बाद गुज़िश्ता 65 साल में तरक्की के एक अजीम दौर में दाखिल हो गया है। जुमेरात के रोज़ जनूब मगरबी चीन के शीजांग खुद इख्तियार इलाके में फ्यूडल निज़ाम का खात्मा करने वाली जमहूरी इस्लाहात की 65वीं सालगिरह मनाई गई, जिसमें खित्ते भर में मुतअद्दिद अज़ीमुश्शान तकरीबात और यादगारी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। इलाकाई दारुल हुकूमत लिहासा में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले 2000 से ज़ायद अफराद इस खुसूसी मौके पर कौमी परचम कुशाई की तकरीब के लिए सुबह 10 बजे पोटाला पैलेस स्क्वायर पर जमा हुए। इस मौके पर एक मकामी बाशिंदे का कहना था कि शीजांग में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं। हमें हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की हिमायत हासिल है, इसलिए यहाँ के बाशिंदे अब मुतमईन हैं। नेंगची शहर के गालाई गांव में मकामी देहातियों ने अपने रिवायती मलबूसात पहन रखे थे और उन्होंने सालगिरह को एक शानदार और खुशगवार रक्स के साथ मनाया। ये इलाका मकामी माहौलियाती निज़ाम के मोहतात तहफ़्फ़ुज़ और मजबूत दही माहौलियाती सेहत के लिए जाना जाता है। गालाई ने 2023 में 1,10,000 से ज़्यादा सयाहों का खैर मकदम किया। इस दौरान सेहत की कुल आमदनी 3.41 मिलियन युआन से तजावुज़ कर गई। मुश्तरका बागात में चीन ने बढ़ती हुई मकबूलियत हासिल की है। मुश्तरका बागात मुल्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक नया मौजू बन गए। शहरियों का कहना है कि मुश्तरका बागात नया तजुर्बा है, बच्चे यहाँ आकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मुश्तरका बागात ने चीन में बढ़ती हुई मकबूलियत हासिल की है, जो मुल्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक नया मौजू बन गया है। शंघाई में गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में शुरू किए गए मुश्तरका बाग यू फॉर्म्स की 2700 मुरब्बा मीटर ज़मीन का 1/3 हिस्सा कम अज़ कम 1 साल के लिए किराए पर लिया जा चुका है। लोगों का इस हवाले से कहना है कि ये इनके लिए एक मुनफरिद तजुर्बा है। ख़ास तौर पर बच्चे यहाँ आकर बहुत महसूस होते हैं। यहाँ किराएदार पौधे लगाने के लिए फहरिस्त में से इंतखाब कर सकते हैं। 20 मुरब्बा मीटर के बाग को किराए पर लेने के लिए 2600 युआन तक दरकार हो सकते हैं। यू फॉर्म्स के फाउंडर के मुताबिक इस फॉर्म में वीकेंड के दौरान तकरीबन 100 ख़ानदान तक विज़िट कर सकते हैं और वो मुस्तकबिल करीब में शंघाई में 2 नए मुश्तरका फार्म खोलने का मंसूबा बना रहे हैं। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। चीन में मस्नूई ज़हानत की तरक्की अरूज पर है। जिंदगी के कई शोबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोज़मर्रा कारोबार के तमाम पहलुओं में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं 100 सेकंड्स में। 100 सेकंड में चीन से जुड़े हॉट टॉपिक पर एक नजर डालते हैं। आज हम बात करेंगे चीन में AI यानी मस्नूई ज़हानत की तरक्की। चीन के यीवू शहर को वर्ल्ड सुपरमार्केट भी कहा जाता है। इस शहर में मस्नूई ज़हानत को रोजमर्रा कारोबार के तमाम पहलुओं में इस्तेमाल करते हुए नुमायां तब्दीली लाई गई है। Hello， 大家好，我是 Sony。Hello everyone, I am Sony.
안녕하세요. 여러분 나는 소니입니다. Son yıllarda bambu ve ahşap ürünler özellikle talep görüyor. ईवो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में ताजिर फूमियाओ लिंग को सिर्फ चीनी और अंग्रेजी जबान आती है, लेकिन वीडियो में वो चीनी, अंग्रेजी, कोरियन और तुर्किया की जबान में आसानी से बात कर सकती हैं। चाइना गुड्स के मसनूई जहानत के ज़हीन सर्विस प्लेटफॉर्म के तैयार करदा AI फंक्शन की मदद से ईवो के ताजिर आसानी से चीनी वीडियोस को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कसीर ज़बान की मुख्तसर वीडियोस में तब्दील कर सकते हैं, जिससे ताजिरों को गैर मुल्की तिजारत में ज़बान की रुकावटों को दूर करने में मदद मिलती है। इसकी बदौलत वीडियोस में चीनी मवाद को अंग्रेजी, रूसी, हस्पानवी और अरबी समेत 36 ज़बानों में तब्दील किया जा सकता है। मसनूई जहानत हमें गाहक के इख्तिसाबात और ऑर्डर्स हासिल करने, एक क्लिक के साथ प्रोडक्ट की तस्वीर और तफसीली सफ़हात बनाने, वर्चुअल पोर्ट्रेट और वीडियोस बनाने, मवासलाती अखराजात को कम करने और मार्केटिंग की सलाहियत को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है। इस साल मसनूई जहानत प्लस की इस्तिलाह पहली बार चीनी हुकूमत की वर्क रिपोर्ट में लिखी गई, जो न सिर्फ कौमी तरक्की में इसकी बढ़ती हुई हैसियत की निशानदही करती है, बल्कि चीनी अवाम की जिंदगियों में गहरी तब्दीलियों का भी बता देती है। चीन में सुर्ख संदल की लकड़ी से बने म्यूजियम में रवायती फर्नीचर और दस्तकारी रखी गई है। सुर्ख संदल से बनी मसनूआत में दर्जन से ज्यादा मराहिल शामिल होते हैं। लकड़ी को खुश्क करना, काटना, आरे से छेदना, नक्श निगारी, पॉलिश करना वगैरह इन मराहिल में शामिल हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं सदफ। देखिए ये सुर्ख संदल से बनी हुई सजावट कितनी खूबसूरत है। मेरे पीछे ये रवायती स्टाइल में इमारतों का बड़ा मजमुआ जिनकी सुर्ख संदल की लकड़ी से बना हुआ म्यूजियम है। इस म्यूजियम में चीनी रवायती फर्नीचर और दीगर दस्तकारियाँ रखी गई हैं जो सुर्ख संदल से बनी हुई है। आइए मेरे साथ देखते हैं। सुर्ख संदल से दस्तकारी के अमल में दर्जन भर से ज़्यादा मराहिल शामिल होते हैं, जैसे लकड़ी को खुश्क करना, काटना, आरे से चेदना, असेंबली, नक्शकारी, पॉलिश करना और वैक्सिंग। इसमें एक साल या कई साल लग सकते हैं। इनमें सुर्ख संदल पर नक्शकारी की महारत की बहुत तवील तारीख है और ये लोक सकाफत का अहम हिस्सा है जो अपनी मखसूस बनावट और महारत के साथ आज भी जारी है। ये चीनी रवायती इमारतों के मातल का एरिया है। फर्नीचर के अलावा ये दस्तकारियाँ जो कदीम चीन के फन तामीर को उम्दगी से उजागर करती हैं, भी सुर्ख संदल से बनी हुई है। फॉरबिडन सिटी के बुर्ज, शाही बाग में चेंचो पवेलियन और वानचुन पवेलियन शाही अंदाज को जाहिर करते हैं। सूबाए शांसी के ऊथाई माउंटेन में लोंगचुन मंदिर के मेहराब पर मुख्तलिफ अंदाज में बेशुमार ड्रैगन कुंदा है जो दुनिया में नायाब है। कदीम बेजिंग के सहन और सूबाए शांसी की फेयुन इमारत जो बादलों में उड़ती हुई महसूस होती है। कदीम बेजिंग शहर का पुराना दरवाज़ा। इन दस्तकारियों पर नक्शो निगार सब हाथों से तराशे जाते हैं। कदीम चीन में फनकार लकड़ी को कागज़ के तौर पर और चाकू को कलम के तौर पर तराशने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो अपनी महारत से कुदरती मनाजिर, फूल, किताब, परिंदे और जानवरों समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नक्शो निगार बनाते थे। उनकी महारत बहुत हैरत अंगेज़ है। 老师，我看您雕的这个上面图案特别好看，这些是什么呀？是一个荷花罗汉床边上的一个扶手，上面有这个图案，你看有这个荷叶、荷花、水草，还有这个水纹，寓意着咱们国家和谐、健康，老百姓幸福、和和美美。这个水纹吧，其实用的是这个，我们学名叫三角刀。你看，这一道一道的，你看，那时候都是水纹。然后我们这个像这个金呢，都是这个刀子出来的，它就起一个画龙点睛的作用。
सबसे हैरत अंगेज बात ये भी है कि इस फर्नीचर के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने के लिए न तो किसी कील और न ही किसी चेपदार मादे की ज़रूरत है। लकड़ी के जोड़ों को उनकी बनावट और मजबूती के एतबार से आपस में जोड़ा जा सकता है। नफासत यहाँ तक कि इनके दरमियान बार बराबर फर्क नहीं है और कोई खला नहीं है। 榫卯这两个字呢，一榫一卯，一凹一凸，一阴一阳，相互平衡。第一个榫卯构件呢，叫做银锭榫。这个是月牙形，这个榫卯构件呢叫做楔钉榫。这是2片儿，对，然后这样，这样拼上，这个真的好精妙呀，非常的奇妙。非常精妙。对，古人的智慧是无穷的，这就是我们灿烂的文化呀。那中国传统家具用这种方式来连接有什么优点呢？第一，这个呢是方便拆卸。咱们刚刚看到的这个大城门，如果单独的运非常的困难，连这个门都出不去。但是呢，我们把它全部拆开之后是易于携带的，而且易于保存。木钉子与这个木的榫卯构件之后连接在一起，不容易被腐蚀。如果变成一个金的这个钉子，变成一个金属的钉子，铁钉子是很容易腐蚀的。हरारती तौसीख और सुकड़ने जैसे अवामिर की वजह से जोड़ों को ढीलेपन से बचाने के लिए फनकार एक लकड़ी को मुख्तलिफ समत में दीगर लकड़ी के जोड़ों के ज़रिए जोड़ते हैं। इस तरह लकड़ी की तौसीख और सुकड़ाओं की कुव्वतें असल अंदाज नहीं होती और एक मुस्तहकम और लचकदार ढांचा तश्कील पाता है जो ढीला नहीं होगा और न ही टूटेगा। बहुत नफीस है ना। एक फर्नीचर यही बेशुमार ढांचों का मजमुआ है। इनके दरमियान तवाज़ुन से चीनी रवायती फर्नीचर वक्त का मुकाबला कर सकता है और तवील अरसे तक इसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। ये तवाज़ुन चीन के रवायती फ़लसफ़ियाना दानिश से भी मुताबिकत रखता है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सूबे फेंजिन की काउंटी पिंगनिन में 100 साल पुराना लोंगथंग गांव वाक़या है। इसमें खूबसूरत मकानात और दोनों तरफ दिलफरेब नहर है। गांव में हर चंद कदम के फासले पर लोग मुसव्वरी करते दिखाई देते हैं। यहाँ ना सिर्फ मुफ्त पेंटिंग क्लास होती है, बल्कि इसके लिए तमाम मतलूबा मवाद भी बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब होता है। मौसम बहार की आमद है और इसके साथ ही लोगों के दिल में घूमने फिरने और दुनिया को देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। खुशकिस्मती से मुझे हाल ही में अपने पाकिस्तानी दोस्त के साथ जनूबी चीन के सूबे फुजियन के कई 100 साल पुराने गांव का सफर करने का मौका मिला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त नौरीन। अब सुबह 7 बजे है। आज हम एक थे सुबह फुजियन के पिंगनन काउंटी जाएंगे और मैं आपको वहाँ के खूबसूरत मनाजिर दिखाऊंगी। लेट्स गो। नौरीन, ये बताएं कि आपको इस जगह के बारे में कैसे इल्म हुआ? मुझे फुजियन में अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि जब उन्होंने सुना कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए फुजियन आ रही हूँ, उन्होंने तजवीज़ की कि आपको ज़रूर पिंगनन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप बहुत हैरान हो जाएंगी। उनकी तजवीज़ सुनकर मैंने इंटरनेट पर पिंगनन की तलाश शुरू की। मैंने जो तस्वीर देखी थी वो इस तरह थी, इस तरह और इस तरह। हाँ, वहाँ दो बज़ाहिर अलग नज़र आने वाली चीज़ें यानी दही इलाके और फन एक साथ मिलते नजर आते हैं। मैं उसे अपनी आंखों से देखने का इंतजार नहीं कर सकती थी। क्या ये वाकई तस्वीर की तरह अमेजिंग है?
कंधे से जाइद सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं इस जन्नतनुमा गांव। इसका नाम है लोंगथान गांव। और नहर के दोनों किनारों पर आप बहुत खूबसूरत मकानात देख सकते हैं, कदीम वाले मकानात देख सकते हैं। सिर्फ कदीम मकानात ही नहीं, आप ये देखें कि इस गांव में आपको हर चंद कदम पर कोई न कोई मुसव्वरी करता हुआ दिखाई दे रहा है, पेंटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूँ लगता है जैसे यहाँ सब ही जो है वो फनकार हैं। यस, वाकई। हर कोई फनकार है, ये कहना दुरुस्त है। दही इलाके और फन की मुलाकात इस तस्वुर से होती है कि हर कोई एक फनकार है। एक चीनी पेंटर मिस्टर लिंग का ख्याल है कि आर्ट चंद लोगों का पेटेंट नहीं है और हर कोई आर्ट तख्लीक कर सकता है। इस तस्वुर के साथ मिस्टर लिंग ने पिंगनान के पहाड़ों में आकर गाँव वालों को ऑयल पेंटिंग सिखाई। अच्छा लग रहा है सुनने में। यहाँ पेंटिंग सिखाई जाती है जी। चले आइए देखते हैं। जनाब ये मुफ्त पेंटिंग क्लास है, यानी ना सिर्फ ट्यूशन मुफ्त है बल्कि पेंटिंग के लिए दरकार तमाम मटेरियल्स, तमाम मवाद भी मुफ्त फराहम किए जाते हैं। जैसा कि ये देखें, ये कैनवस है, ये स्टैंड्स है, ये ब्रश है, ये पेन्स वगैरह वगैरह। देखें कितनी अच्छी तरह वो पेंट कर रहे हैं। और ये क्लास है हर किसी के लिए खुली है, चाहे उम्र या बैकग्राउंड कुछ भी हो। जब तक आपको पेंटिंग सीखने का शौक है, आप यहाँ सीखने के लिए आ सकते हैं। अच्छा नौरीन, मैंने कभी पेंटिंग नहीं की, लेकिन ये मौका पाकर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी थोड़ी सी जरूर ट्राई करेंगे। चले चलते हैं। अच्छी बात यह है नौरीन कि यहाँ पर असातिज़ा जो हैं वो लोगों को पेंटिंग की टेक्निक नहीं सिखा रहे, बल्कि वो जो टेक्निक है उसको दुरुस्त तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का मुशाहिदा तो करवाया जा रहा है, लेकिन साथ ये भी बताया जा रहा है कि आपने दूसरों की नकल नहीं करनी, बल्कि जो आपके ख्याल में इम्पॉर्टेंट है, जो आ रहा है आपने उसे पेंट करना है। जैसे शायरी में भी होता है, कहते हैं कि ख्याल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आप सोच रहे हैं वो आपकी ओरिजिनलिटी है। हाँ, ड्राइंग वैसे खुद का इजहार करने और दुनिया का मुशाहिदा करने का एक तरीका है। जैसा बोलना गाना एक ही बात है, यानी कुदरती बात है। इस प्रोजेक्ट का असल मकसद ये है कि हर कोई पेंटिंग के लिए अपने दिल की बातें कर सके। सही, अच्छी बात है, अपने ख्याल का इजहार। फन दही इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसने न सिर्फ देहातियों की रूहानी दुनिया को मालामाल किया, बल्कि खैर मुतवक्को तौर पर उनके लिए बैरूनी दुनिया से राबिते का एक बोल भी बन गया। देहातियों की पेंटिंग्स इंटरनेट के जरिए फैले और बेशुमार तारीफें हासिल की, और कुछ फनबारे तो 200 से 300 yuan में फरोख्त हुए, और ये काम दही मायशत का हिस्सा बन गया। इस जादुई इवेंट ने मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स को भी अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जनाब ड्राइंग अब इस दही इलाके की एक खुसूसियत बन गई है। मुकामी बाशिंदों के अलावा हर साल फन से मोहब्बत करने वाले हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। कम अज़ कम एक हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा कई महीनों तक यहाँ काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ये सब कुछ। और ये देखें, इसीलिए हमें यहाँ कदम कदम पर जो फन मुसव्वरी है उसके कमालात नज़र आ रहे हैं। और ये सारे पेंटर्स जो हैं ये कोई प्रोफेशनल पेंटर्स नहीं है, इनके दिमाग में, इनके जहन में जो भी ख्याल आ रहा है तो उनके जहन में आया है, तो उन्होंने उसको पेंट कर लिया है। बहुत अच्छा है। असल में इस गांव को फन की वजह से मकबूलियत मिली है और गांव में सहूलियात साही साथ कायम की गई हैं। हम इस कदीम गांव में चहलकदमी कर रहे थे। हमें वक्तन फवक्तन अच्छी डिजाइन करदा कॉफी शॉप्स नजर आए। ताज़ा पकी हुई रोटियों की खुशबू को सूंघने का मौका मिला। मुफलीद होटल्स, छोटे कंसर्ट के मुकामात, आर्ट गैलरीज,
और अजाब खबरों से गुजरे। आम लोगों के तस्वुरात में शहर के नुमाइंदे दही इलाकों में आ गए हैं और इस कुदरती खूबसूरती से जगमगा उठे हैं। अच्छा नौरीन साहबा, नई चीज़ों का सामना करते हुए आम तौर पर लोग बहुत फिक्रमंद होते हैं कि इससे जो रिवायती चीज़ें हैं वो तब्दील हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और इसीलिए फिर उनकी हिम्मत नहीं होती और वो तब्दील नहीं होना चाहते। इसीलिए फिनलैंड का तजुर्बा वाकई काबिल कदर है, बहुत नादिर है, क्योंकि इस रिवायती गांव के कदीम इमारतों के इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ को यकजा कर दिया गया है। तो इसीलिए हमें ये बहुत अच्छा एक इम्तिजाज नज़र आता है। वाह जनाब, देखें ऊपर से हम पहचान सकते हैं कि ये चीन के मिंग शाही खानदान की इमारत है और अब उसको बहाल कर दिया गया है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से आप पहचान सकते हैं ये मिंग शाही खानदान की खुसूसियत के हामिल मकान है। बिलाशुबा कदीम मकामात की मरम्मत कोई मामूली बात नहीं है। उसे कैसे ठीक किया जाए, किस किस्म की मरम्मत से दही शिकल को सबसे ज्यादा बहा किया जा सकता है, उसकी मनसूबाबंदी और डिजाइन यकसा होना चाहिए, कम कार्बन और माहौल दोस्त होना चाहिए, रिवायती तकनीकों को अपनाना चाहिए। ये सब इक़दामात मुकामी हुकूमत की कोशिश और हिमायत से तेजी से नाफिज किए गए। आज उन खूबसूरत कदीम देहातों के पीछे बेशुमार लोगों की मेहनत है। जनाब, आपके सामने ये कदीम मकानात कई साल पहले बहुत खस्ता हालत है, इनमें बहुत से इवन ला वालस भी थे, और फिर मुकामी हुकूमत ने अच्छी मनसूबाबंदी के कदीम मकानात 15 साल रेंट के लिए पर स्क्वायर मीटर 3 युआन सालाना किराए पर दिए जाएं। 3 युआन पर स्क्वायर मीटर तो बहुत कम है। सालाना तकरीबन 120 रुपए के बराबर है। शर्त सिर्फ ये है कि किरायादार को उसकी मरम्मत करना होगी। हाँ, और मेरा ख्याल है कि मकामी लोगों को इस तरह से कम रेंट पर देने से जो अफराद हैं जो इसको लेते हैं उन पर दबाव बहुत कम होता होगा। इसीलिए ये चीज़ का मोटो कदीम गांव को नई जान बख्शता है। बिल्कुल सही है। नौरीन, जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है वो ये कि हमें यहाँ बहुत से ऐसे नौजवान मिले हैं जो अपनी ज़हानत और अपनी सलाहियत से अपनी इस आबाई जगह को बेहतर बना रहे हैं। ये बात यकीनन काबिल तारीफ़ है। लेकिन जनाब, आपको पता है कि सिर्फ 7 साल पहले यहाँ के रहने वाले वो बाहर जाना चाहते थे, वो यहाँ रहना नहीं चाहते। इस गांव की असल आबादी 1000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल थी, लेकिन उस वक़्त सिर्फ 200 से कम लोग यहाँ रह गए थे। लेकिन इस मुफरीद सकाफती सियाहत ने उन्हें अपने आबाई वतन को वापस आने की उम्मीद दी, फिर भी लोग वापस आ रहे हैं इस वक्त। बाहर जाने के बजाय दुनिया की खूबसूरत चीजों को अपने हम लाना बेहतर है। ये तस्वुर इस कदीम दही इलाकों को जानदार बना देता है। दही इलाकों की कदर हमेशा से रही है, लेकिन ये नए अहद से मुताबिकत कायम करने और यहाँ की खैरफाव ताकत को पैदार करने के लिए अपने अंदर से आवाज के पैदा होने का मंतज़र है। दोस्तों, क्या आप मुत्तफिक हैं? चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।